Good morning, students. In the previous class, we were discussing about the issue of debentures by considering the terms of redemption. So redemption बेस पे अगर हम जनरल एंट्रीज लिखते हैं तो हमने आप लोगों को बताया टू बेसिक जनरल एंट्रीज कंपलसरी है। एक है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देन जब सेकंड एंट्री लिखते हैं सो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस दैट डिबेंचर्स आर 6 सिचुएशंस हैं। सिचुएशन 1, 2, 3, 4, 5 and 6. If the debentures are issued at par and redeemed at par, then we write simply debenture application and allotment account debit to debentures. But if the debentures are issued at par and redeemed at premium, so if you are redeeming at a premium, it is a loss, so loss must be debited. बट रिडम्शन प्रीमियम जब होता है तो दो इम्पॉर्टेंट थिंग है, मैंने बताया आप लोगों को कि लॉस ऑन इशू एक डेबिट होगा और प्रीमियम ऑन रिडम्शन क्रेडिट होगा। सो इसी बेस पर, मतलब इस जो टर्मिनोलॉजी मैंने एक्सप्लेन किया उस बेस पर मैं एक प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन करूँगा। आई विल एक्सप्लेन यू वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस so that you will able to understand. I'll be showing you in the proforma how to pass the journal entries directly, so that you will able to learn like what would be the journal entries for this debenture issue and all. So I'm doing this problem where you can see the debentures are given. Give journal entries for the issue of debentures in the following conditions. First one, issued 2000 12% debentures of 100 each at par, यानी एक डिबेंचर का वैल्यू 100 है, ईच डिबेंचर वैल्यू इज 100 एंड इट इज इशूड एट पार, यानी इशूड एट पार। रिडीम्ड ऑल्सो एट पार, और हम इशू कर रहे हैं 2000 डिबेंचर्स। रिमेंबर आर डिबेंचर्स इशू इज 2000 डिबेंचर्स हैं, फेस वैल्यू 100 है, right? This is face value, and we are redeeming at par and issuing at par, both are at par. So now let's see what would be the entry. As I told you, the first entry would be bank account debit to debenture application and allotment account, and here we write actually 2000 debentures हैं और 100 each है. So when you issue at par and redeemed at par, whatever it may be, if you are issuing at par means you will collect 100 rupees each. So here it would be 2 lakhs. The same way the second entry when you are writing, here there is no loss, no profit, because we are issuing at par and redeeming at par. Hence debenture, this one, debenture application and allotment account directly will be transferred to debentures account. हो गया 2 lakhs. This is the first case where debentures are issued at par and redeemed at par case is given in question. Now the second one you can see, issued 2000 12% debentures of 100 each at a discount of 2%. Now this time we are issuing at a discount, redeemable at par, यानी redemption redeemed at par, we are issuing at a discount but redeeming at par. That means redemption में कोई profit, no loss, but at the time of issue we have got loss, and you know loss must be debited, right? And in the case of issued at a discount, issued at the time of issued loss, we should record it as a discount on issue of debentures. So discount on issue of debentures. So here we write the first entry for this is, as this the first entry for this is the same like bank account debit to debenture application and allotment. This time we'll get 2000 debentures है, लेकिन 100 minus the discount rate is 2%. We won't get 2 rupees, that is a discount, no, 2% discount.
सो 100 माइनस 2% इज 98. होप यू नो हाउ टू कैलकुलेट. 100 में 2% कैलकुलेट करना है, 2 रुपीज़ आएगा, 100 में से 2 गया 98. सो द अमाउंट वुड बी हियर इज 1,96,000 if you multiply 1,96,000. This is the first entry. In this, the second entry, this is the second situation, and the second entry here, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को तो हमें डेबिट करना ही है. ये है 1,96,000. और इस प्रॉब्लम में, मतलब इस इशू में हमें लॉस है, इसलिए हमें लॉस को डेबिट करना है. लेकिन लॉस इज बिकॉज ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू. सो वी राइट हियर एज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज लॉस शुड बी डेबिटेड एज पर नॉमिनल अकाउंट. और ये होगा 2,000 इंटू 2 रुपीज़, जो डिस्काउंट हम 2 रुपीज़ दिए थे. सो इट बिकम्स 5 रुपीज़. And now the debenture value is compulsory, that would be 2 lakhs only. There is no change in the debenture value. Whether you issue at par, premium, redeem at par, premium, whatever, the debenture value will not get changed. It's 2 lakhs only. Now the situation number 3. Here it is given, issue 2,000 12% debentures of 100 each at a premium of 5%. यानी इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार. यानी वी आर इशूइंग एट प्रीमियम है, रिडीमेबल एट पार है. रिडीमेबल में नो प्रॉफिट नो लॉस, बट प्रीमियम में, इशूड में प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट मस्ट बी क्रेडिटेड एज पर नॉमिनल अकाउंट. And you know, when you are crediting nominal account premium, when you are crediting, it must be transferred to securities premium account. So the first entry would be, here is as usual, there is no change in the first entry. Bank account debit to debenture application and allotment. This time we are collecting 2,000 into 100 plus 5%. क्योंकि 100 पे 5% प्रीमियम भी कलेक्ट कर रहे हैं, तो अमाउंट आएगा हमें 100 प्लस 5%. सो द अमाउंट वुड बी 105. So the amount would be here is 2,10,000. 2,10,000. The amount is 2,10,000. अब हम जब ट्रांसफ़र करेंगे इसका सेकंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इसको क्रेडिट करना एज यूजुअल है, इसमें कोई चेंज नहीं. इसको डेबिट करेंगे सेम अमाउंट व्हाट वी हैव डेबिटेड. नाउ यहाँ पे हमें डिबेंचर्स भी क्रेडिट करना है, ये कंपलसरी है. मतलब ये डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट स्टार्टिंग से देखिए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर, ये कॉमन लिखने के बाद लॉस है तो डेबिट करेंगे, प्रॉफिट है तो क्रेडिट करेंगे. सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, इट शुड बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, दैट इज़ 10,000 इज़ द सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, बिकॉज 2,000 इंटू 5 रुपीज़ ना, और ये हो गया 2 lakhs. डिबेंचर हमेशा 2 lakhs होता है. सो होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ द सिचुएशन नंबर 4, यानी हमें जो दिया हुआ है सिचुएशन ये 4. सो हियर इज द वन मोर इज गिवन, इशू 2,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार बट रिडीमेबल एट ए 5% प्रीमियम. जब हम रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम से, दैट मीन्स रीपेमेंट हम कर रहे हैं एक्स्ट्रा, सो इट वुड बी ए लॉस फॉर अस. पार के टाइम पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है. So when you are writing the entry, what I suggest you is follow the sequence. Like एक entry होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये फर्स्ट एंट्री लिख लेना. सेकेंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो यहाँ क्रेडिट किया उसको डेबिट करेंगे, जो यहाँ क्रेडिट होगा वही डेबिट होगा, और एक स्पेस छोड़ देना है, और 2 डिबेंचर्स लिख लेना है. दिस इज़ द बेसिक एंट्री दैट यू शुड राइट. कुछ भी सिचुएशन हो पहले ये 2 लिख लेना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ये लिख लेना है. उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि एंट्री में क्या आएगा और क्या लॉस है क्या प्रॉफिट है, ये सब हमारा एंट्री होगा. तो पहले तो हमें पार में कोई चेंज नहीं, दैट मीन्स वी आर इशूइंग एट पार. इशू में कोई चेंज नहीं, इशूइंग एट पार मतलब हमारा 2 lakhs अमाउंट आ जाएगा, राइट. 2 lakhs अमाउंट, यानी यहाँ पे भी 2 lakhs होगा क्योंकि ये सेम अमाउंट है.
और डिबेंचर्स हमेशा हमें फेस वैल्यू ही लेना है, डिबेंचर हमेशा हमें फेस वैल्यू ही लेना है। यहाँ तक क्लियर। अब हमें देखे आए कि ये डिबेंचर में क्या हो रहा है। इशूड एट डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को डेबिट करना होगा, इशूड एट प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करना होगा। बट नाइदर वी आर इशूइंग एट डिस्काउंट नॉर एट ए प्रीमियम, सो इशू में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रिडम्पशन में हमारा एक ही सिचुएशन है, अगर एट पार रिडीम हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट एट प्रीमियम अगर रिडीम कर रहे हैं तो हमें एक डेबिट करना है और क्रेडिट भी करना है। इन दिस केस वी आर इशूइंग एट पार एंड रिडीमिंग एट प्रीमियम। तो प्रीमियम के लिए हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स लिखना ही है। तो वो हो गया, प्रीमियम कर रहे हैं 5%, सो 5000 होगा, सॉरी 10,000 होगा, 5%। रिडीम्ड एट प्रीमियम 5%, 10,000 होगा। और जैसे ही हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 लिखे हैं तो ये हमारे लिए लॉस भी है, इसलिए 10,000 हमें डेबिट भी करना है। तो इसे लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये है हमारा मतलब शॉर्टकट टू राइट द एंट्री। वन मोर एग्जाम्पल आई एक्सप्लेन यू टू मेक यू अंडरस्टैंड क्लियरली कैसे करना है। Issued 2000 12% debentures of 100 each at a discount of 2%, redeemable at a premium of 5%. So यहाँ पे हमें थर्ड मतलब फर्स्ट एंट्री कॉमन है, कोई चेंज नहीं। फर्स्ट एंट्री में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये है कंपलसरी एंट्री। उसके बाद सेकंड एंट्री होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कॉमन है, इसको डेबिट करते हैं। और स्पेस छोड़ के हम लिखते हैं डिबेंचर्स, ये कंपलसरी है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। ये दो एंट्री हमेशा कंपलसरी है, पहले लिख लो कि एक है डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये दो एंट्रीज कॉमन है, ये लिख के रख लेना है। अभी हमें डिसाइड करना है कि डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एट प्रीमियम। एट पार है तो कोई चेंज नहीं, एंट्री सेम रहेगा। एट प्रीमियम रहा तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है। एट डिस्काउंट रहा तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखना है। इस प्रॉब्लम में डिस्काउंट है इसलिए हम लिख रहे हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डेबिट करना है। ये पार का इशू का हो गया। अभी हमें देखना है कि रिडम्पशन पे, इफ़ इट इज़ रिडीम्ड एट पार वी शुड नॉट राइट एनीथिंग, बट इफ़ इट इज़ रिडीम्ड एट प्रीमियम, एक डेबिट करना है एक क्रेडिट भी करना है। क्रेडिट करना है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ओके, और डेबिट करना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो क्लियर है, आप लोग थोड़ा समझने का कोशिश करना है। यहाँ पे पहले एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये एंट्री कॉमन है। सेकंड एंट्री डिबेंचर टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर, ये एंट्री कॉमन है। अब बीच में जो आइटम्स लिखना है हमें डिसाइड करने के लिए, पहले देखो इशू में इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट को डेबिट करो। इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम को डेबिट क्रेडिट करो। उसके बाद रिडम्पशन भी देखना होगा। रिडीम्ड एट पार छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, बट रिडीम्ड एट प्रीमियम लॉस को डेबिट करना, प्रीमियम को क्रेडिट करना। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे, पहले इशू प्राइस देखो कितना है। हम इशू डिस्काउंट में कर रहे हैं, मतलब कम पैसे कलेक्शन होगा, 2% डिस्काउंट पे कर रहे हैं, तो 2 लाख में 2% यानी 1,96,000 हमें कलेक्शन होगा। तो बैंक हमें आएगा 1,96,000 ओनली, बैंक हमें आएगा 1,96,000 ओनली। तो जो 1,96,000 होगा यहाँ पे भी 1,96,000 ही लिखना है हमें, लेकिन डिबेंचर हमेशा हमारा फेस वैल्यू होता है 2 लाख। और जो डिस्काउंट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट है हमारा, वो डिस्काउंट हो गया। अब जो प्रीमियम हमें रिडम्पशन बताया गया 5%, जो 10,000, वो प्रीमियम 10,000 यहाँ होगा। जो अमाउंट यहाँ होगा यहाँ पे भी वही अमाउंट आएगा 10,000। Try to understand the logic. If you are able to understand this logic, entry for any journal entry we can write. So once again I am telling you, before going for the question itself, I am writing one entry: bank account debit
टू डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये एंट्री लिख के रख लेना है। उसके बाद सेकंड एंट्री हमें लिखना है डिबेंचर, इसका डेबिट करना, डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 स्पेस छोड़ देना, टू डिबेंचर्स। ये कंपलसरी है हमारे लिए, ये 2 एंट्री लिख लेना है। अब हमें देखना है क्वेश्चन में इशूड का सोचना है कि इशूड एट पार है तो यहीं छोड़ देना, कुछ नहीं करना है। इशूड एट प्रीमियम है तो 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ऐड करना है। इशूड एट पार में कुछ नहीं करना है, जो भी एडिशनल करना है इसी जनरल एंट्री, ये जनरल एंट्री तो कॉमन है, कुछ नहीं होगा। ये जनरल एंट्री इन ऑल द सिचुएशंस इट इज सेम। सो जो भी एडजस्ट करेंगे हम सेकंड एंट्री में करेंगे, वी हैव टू मेक द एडजस्टमेंट इन सेकंड एंट्री। अब ये सोचो कि इसमें क्या हो रहा है, पहले इशू देखो, इशूड एट पार प्रीमियम एंड डिस्काउंट। एट पार कुछ नहीं करना, यही जनरल एंट्री। एट प्रीमियम 2 सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है। एट डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स लिखना है। एट पार कुछ नहीं लिखना। एट डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, क्योंकि लॉस है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट। इशूड एट प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इशू के बाद अगर इशू हो गया उसके बाद हमें रिडेम्पशन के बारे में भी सोचना है। रिडीम्ड एट पार कुछ नहीं करना है, बट रिडीम्ड एट प्रीमियम एक डेबिट करना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और एक क्रेडिट करना है, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। जनरल एंट्री तो रेडी है 2 हमारे पास। तो यहाँ बताया है इशू 2012% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। सो रिडीम भी प्रीमियम है, इशूड भी प्रीमियम है। 2000 रुपीज़ हमारा 2000 डिबेंचर्स है, 100 ईच है, लेकिन हम 5% प्रीमियम से इशू कर रहे हैं, मतलब 5% यानी 10,000। सो वेन एवर यू इशू यू विल कलेक्ट एन अमाउंट ऑफ 2,10,000 बैंक में आ जाएगा। उसी अमाउंट को हम 2,10,000 यहाँ कर लेते हैं, लेकिन दिस 2,10,000 बैंक में हमें डिबेंचर को तो लिखना है 2 लाख ही लिखना है। अब ये दोनों में हमें प्रॉफिट है 10,000, सो द प्रॉफिट विल गो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अगर लॉस होता तो डिस्काउंट लिखते हैं 10,000। सिंपल से आपको ये भी एक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने 2,10,000 लिखा तो वही 2,10,000 यहाँ पे आएगा, लेकिन डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू होगा। सो इन दोनों का डिफरेंस में अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ क्रेडिट करेंगे, ये कम है तो डेबिट करेंगे। तो यहाँ होगा तो डिस्काउंट, यहाँ होगा तो प्रीमियम। सो दिस प्रॉब्लम इज इशूड बेस्ड ऑन प्रीमियम। सो प्रीमियम हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया, इशू हो गया। अब देखते हैं रिडम्पशन, रिडीम्ड एट प्रीमियम। सो व्हेन इट इज रिडीम्ड एट प्रीमियम यू शुड राइट हियर एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट करना है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को क्रेडिट करना है। यानी इफ़ यू आर रिडीमिंग एट प्रीमियम दीज टू वी शुड राइट कंपल्सरीली। जितना भी प्रीमियम है सेम अमाउंट लिखना है, एंड इट इज़ गिवन 10%, यानी यहाँ 20,000 होगा और यहाँ पे भी 20,000। दीज 2 अमाउंट्स रिमेन सेम, दोनों लिखना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे। सो होप you are able to understand this. Go through this video and try to learn the problem, and if you have any questions we'll be discussing on it. So first basic thing आपको याद रखना होगा कि आपको जनरल एंट्री तो लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और इसके बाद डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करके 2 स्पेस छोड़ के टू डिबेंचर लिखना है। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ मैं। अगर इफ़ इट इज़ ए लॉस इशूड के टाइम, पहले इशू देखना है, पहले इशू के बारे में सोचना है। इशूड एट पार, बस एंट्री में कोई मॉडिफिकेशन नहीं। इशूड एट प्रीमियम, एंट्री में 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। इशूड एट डिस्काउंट, एंट्री में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू के बारे में हो गया। फिर रिडम्पशन के बारे में सोचिए। एट पार नो चेंज इन द एंट्री, एट प्रीमियम डेबिट और क्रेडिट करना है। डेबिट में लिखना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्रेडिट में लिखना है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सो स्टूडेंट, go through this video. Hope you are able to understand the shortcut and solving the problem. This will be definitely asked in the exam for 4 to 6 marks. So complete this, learn this. If you have any questions you ask me.